हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 269 के बारे में। आर्टिकल 269 क्या बताता है, इसके बारे में मैं आज बात करूंगी। 269 article says about taxes levied and collected by the union but assigned to the states. 269 article says about taxes levied and collected by the union but assigned to the states. Number 1, taxes on the sale or purpose. Taxes on the sale or purchase of goods and taxes on the consignment of goods shall be levied and collected by the government of India. Number 1, taxes on the sale or purchase of goods and taxes on the consignment of goods shall be levied and collected by the government of India but be assigned and shall be shall be assigned and shall be deemed to have been assigned to the states on the after the first day of April 1996 in the manner provided in clause 2nd. Explanation for the purposes of the clause. Explanation इसका जो स्पष्टीकरण है इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यानी purposes of this clause. Number A, the expression taxes on the sale or purchase of goods. क्या कहा जा रहा? माल के क्रय या विक्रय पर कर। पद से समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर अभिप्रेत है। ये इसमें एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, इसका स्पष्टीकरण। नंबर ए, द एक्सप्रेशन टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स shall mean taxes on sale or purchase of goods other than newspapers where such sale or purchase taken place in the course of interstate trade or commerce. Number B, the expression taxes on the consignment of goods. The expression taxes on the consignment of goods shall means taxes on the consignment of goods whether the consignment is to the person making it or to any other person where such Number B, the expression taxes on the consignment of goods shall mean taxes on the consignment of goods whether the consignment is the person making it or to any other person where such consignment takes place in the course of interstate trade or commerce. Number 2, the net proceeds in any financial year of any such tax except in so far as those proceeds represent proceeds attributable to union territories shall not form part of the consolidated fund of India but shall be assigned to the states within which that tax is leviable in the year and shall be distributed among those states in accordance with such principles of distribution as may be formulated by Parliament by law. Number 3, Parliament may by law formulated
Number third, Parliament may by law formulate principles for determining when a sale or purchase or consignment of goods takes place in the course of interstate trade or commerce. अब इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है। अनुच्छेद 269 अनुच्छेद 269 बात करता है संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों के बारे में 269 अनुच्छेद बात करता है। नंबर 1, माल के क्रय या विक्रय पर कर। माल के प्रेषण पर कर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे, किंतु खंड 2 में उपबंधित रीति से राज्यों को 1 अप्रैल 1966 को या उसके पश्चात सौंप दिए जाएंगे या सौंप दिए गए समझे जाएंगे। स्पष्टीकरण, इस खंड के प्रयोजनों के लिए नंबर का माल के क्रय या विक्रय पर कर माल के क्रय या विक्रय पर कर पद के माल के क्रय या विक्रय पर कर पद से समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर अभिप्रेत हैं जिनमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है। अंतर्राज्यिक जो राज्य के अंदर व्यापार या वाणिज्य से जुड़ा हुआ होता है व्यापार, उसकी बात की जा रही है। जो ऐसे जो कर हैं वो माल के क्रय या विक्रय पर या समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर अभिप्रेत हैं, ऐसे करों की बात की जा रही है। नंबर खा, माल के प्रेषण पर कर पद से माल के प्रेषण पर चाहे प्रेषण उनके करने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया हो उस दशा में कर अभिप्रेत हैं जिसमें ऐसा प्रेषण अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है, उसकी बात की जा रही। नंबर 2, किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर के शुद्ध आगम वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक वे आगम संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए आगम माने जा सकते हैं भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे। क्या कहा जा रहा है कि वो भारत की संचित निधि है उसके भाग नहीं होंगे, उससे अलग ही होंगे, किंतु उन राज्यों को सौंप दिए जाएंगे जिनके भीतर वे कर उस वर्ष में उद्ग्रहणीय है और वितरण के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जो संसद विधि द्वारा बनाए उन राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। क्या कहा जा रहा है? संसद विधि के द्वारा ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जो संसद विधि द्वारा बनाए उन राज्यों के बीच वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, उनको वितरित कर दिया जाएगा। नंबर 3, संसद यह अवधारित करने के लिए कि माल का क्रय या विक्रय या प्रेषण कब अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है। संसद ये अवधारित करने के लिए संसद को ये अधिकार होगा कि वे अवधारित करेगी कि माल का क्रय या विक्रय या प्रेषण कब अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है, उसका ध्यान रखेगी। संसद विधि द्वारा सिद्धांत बना सकेगी। ये जो विधि के द्वारा सिद्धांत बनाने का अधिकार संसद को है। तो ठीक है दोस्तों, कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 270 उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अब जो उद्ग्रहित कर हैं उनका संघ और राज्यों के बीच उन दोनों संघ यानी भारत सरकार और राज्यों के बीच उनका वितरण कैसे होगा, कब कब होगा, क्या क्या उसमें वितरित किया जाएगा, तो उसकी बात मैं इसमें पढ़ूंगी। अनुच्छेद 270 में क्या कानून है उसके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हाँ, आप कमेंट करते रहें, हमें बताते रहें कि मैं सही से नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे पढ़ने में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, उनको मैं धीरे धीरे कैसे सुधारूँ।
प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, रीड करना है ज़्यादा समय तक। और बोलने में भी मैं अच्छी नहीं हूँ, बोल भी नहीं पा रही हूँ, और मेरी वॉइस भी अच्छी नहीं है। मुझे पता है आप लोग कमेंट करके बताते भी नहीं कि मेरी वॉइस कैसी है, मैं कैसा रीड करती हूँ। आप बताते रहें मुझे तो मैं सुधार करती रहूँगी अपने अंदर, ठीक है। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।